Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes. This is our maths class for grade 5 and our lecture number is 11. As you know that before starting our today's lesson, firstly recite dua with me. Raise your hands for prayer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा. O Allah, increase my knowledge. Okay, now let's start our today's lesson. Today we will discuss unit number 5, decimal fractions and percentages. Open up page number 66. Look at the exercise 8. Subtract the following decimals numbers. Question number 1, 32.3 minus 19.56. How will we subtract these two numbers? Arrange the numbers in this form. Now start subtracting. This is 0. 1 carry. This will be 10. 10 minus 6. 4 is remaining. Here 2 is remaining. 1 carry from 2. This will be 12. 12 minus 5. 7 is remaining. Point के नीचे point लगाना है. Here 1 is remaining, 1 carry from 3. This will be 11. 11 minus 9, 2 is remaining. Here will be 2. 2 minus 1, 1 is the answer. This is our required answer. This is the subtraction method of decimal numbers. All the other parts 2, 3, 4, 5 will be done with the same method of question number 1. I hope so you will understand. Open up page number 69. Look at the top. Exercise 10. Work out the following. Now we studied about the addition and subtraction of decimal numbers. Now we will study the multiplication of decimal numbers. How will we multiply decimal numbers, two decimal numbers? This is our question. 3.1 multiply 4. Arrange these values in this form. 3.1 multiply 4. 4 ones are 4, 4 threes are 12. Here point is after first digit. Then we put point here after first digit from right side. Look at the question number 2. 24.67, 0.7. We have to multiply these two values. 7, 7. 49, 9 is here and 4 is the common like carry. 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 4 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा. 6 नीचे 4 ऊपर कैरी. 7 4 ज़ा 28. 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32 आएगा. ठीक है. 2 नीचे 3 ऊपर कैरी. 7 2 are 14, 15, 16, 17. 17 will be here. 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑल टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए वो उसका आंसर 0 ही आता है. ठीक है. अच्छा, जब हम इनको नीचे ऐड करेंगे 9, 6, 2, 7 एंड 1. पॉइंट का हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट यहाँ पे तो 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 का कैसे हो गया. हमने इस पूरे को काउंट करना होता है. ठीक है. अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है. इस पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर और नीचे कितने कितने डिजिट हैं,
काउंट करें 1 2 3, here is 3 digits. Now we will put point after 3 digit from right side. Okay, look at the exercise 11. Fill in the blanks. 82.9 multiply what? The answer will be 8219. We have to multiply with 10 and 100 and 1000. जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे लिखना है. 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर कभी भी नहीं आएगा. 100 के साथ करवाएंगे तो ये आंसर बनेगा. ठीक है. इसी तरह 2 है 0.007 मल्टीप्लाई with what? The answer will be 7.0. Then we multiply with 100, then we will get this answer. Same like part 3, we will multiply this number with 10, the answer will be this. In part 4 we will multiply this number with 100, we will get the answer 0.1. Part 5 we will multiply with 100 and we will get the answer this. Now come to the exercise number 13. Use the right conversion and fill in the blanks. Use the right conversion and fill in the blanks. 0.5 meter equals to 450 centimeter. How we will guess? Here should be 450. जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करते हैं. 4.5 will multiply 100 and the answer will be 450. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से. पार्ट 2 देखें. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से. इस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये. सेम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से. ठीक है. 5.1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 100 से तो हमारे पास 510 आ गया. सेम क्वेश्चन नंबर 4. 1.5 लीटर इक्वल्स टू दिस. तो लीटर है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. 1500 आएगा हमारे पास. पार्ट 5 है 5.5 सेंटीमीटर और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से. 5.5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो हमारे पास आंसर आएगा 55 मिलीमीटर. Okay dear students, this was our today's lesson and you have to complete this lesson with 2 days. We will meet in the next lesson inshallah very soon. Take care of yourselves. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes. Tell me about your activities. Dear students, you have to take care of yourselves and your parents from this dangerous disease, coronavirus. Okay. Now let's come to the point. Let's come to the topic, our today's topic. But firstly recite dua and I tell you that this is our lecture number 12. This is our maths class for grade 5. Raise your hands for prayer. Firstly we have to recite dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. O Allah, increase my knowledge.
We are studying about unit number 5, decimal fractions and percentages. Let's come to the page number 71. Look at the exercise 14, divide. हमने पहले पढ़ा कि डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. प्रीवियस लेसन में हमने ये पढ़ा कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ वी विल डिवाइड डेसिमल वैल्यूज़. Look at the question number 1, 34.67 divided by 10. How will we divide these two values? There is nothing new concept. Look at here, question number 1. This is our question. We have to write it in this form. 10 is divided by 34.67. 10 3s are 30. 34 minus 30 and 4 is remaining. जो ये पॉइंट है, अब 4 पीछे बच गया हमारे पास, तो अब ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 6 नीचे आ जाएगा. 10 4s are 40. 46 minus 40, 6 is remaining. 7 will become down. 67. 10 6s are 60. 67 minus 67 is remaining. With this point we will put 0 over here. 70, 10 7s are 70 and 0 is remaining. This is our required answer, 3.467. इनमें से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए. 486.23 विच इज़ डिवाइडेड बाय 1000. दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3. हमने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में. यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे 1000 है और ये वैल्यू हमारे पास 100 में है. पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है वो 100 में है और 1000 में है. 100 थोड़ा है ना, छोटी वैल्यू है, और जो 1000 है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आ रहा है, ये हमारे साथ मसला कर रहा है. अगर ये पॉइंट ना होता तो हम इस 2 को इस वैल्यू के साथ मिला लेते तो हमारे पास ये भी 1000 बन जाती, 4000 और ये 1000 हो जाता, तो हम इजीली टेबल लेके जा सकते थे. लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है इस पॉइंट की, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे. पॉइंट विल बी पुट हेयर एंड दिस वैल्यू विल बी, अब ये जो वैल्यू है ये अब 4000 बन चुकी है, ठीक है. अब हम इस 2 को इसके साथ शामिल कर सकते हैं, 486 के साथ हम 2 को शामिल कर सकते हैं, ठीक है. 1000 4s are 4000. 862 is remaining. We will put down 3. 8000. 1000 8s are 8000. 623 is remaining. ये जो पॉइंट था इसी के ज़रिए हमने यहाँ पे 0 शामिल कर लिया है, 0 लगा लिया है इसके साथ, ठीक है. अब ये वैल्यू क्या बन चुकी है, 6000. 100 6s are 6000. 230 is the remaining. We will put 0 again. This will be 2000. 1000 2s are 2000. 300 is remaining. We will put 0 with the help of this point. Now this is the 3000. 3000 minus 3000 is 0. 100 3s are 3000. This is our required answer. Now come to the exercise 15. Fill in the blanks. This is the sample of this questions. 85.9 डिवाइडेड बाय 1000 एंड आंसर इज़ दिस. हमने इसको जब 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया. अब वो कह रहे हैं कि आप इन सब नंबर्स को
किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये आंसर आए। 87.5 को जब हम 100 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सिंपल डिवीजन है, यही वाली डिवीजन है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल यही मेथड है। इन्हीं मेथड पे चलेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। 9 divided by 1000, the answer will be this 0.009. Okay, when we divide this value with 100, then we will get this answer. And when we will divide this with 0, 0 is divided by this, then we will get the answer 0. अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमारे पास आंसर 0 आ सके। 1 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। एक ही सोल्यूशन है कि हम 0 को डिवाइड करवाएं इस वैल्यू के साथ। 0 को जिस वैल्यू से डिवाइड करवाएं वो 0 ही आएगी, ठीक है। नाउ मूव टू द पेज नंबर 72, एक्सरसाइज नंबर 16, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया। सिंपल, अब हमने इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर लाना है, ठीक है। लुक एट हियर, इसकी भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया, 35 आया, 5 नीचे, 3 ऊपर, रिमेनिंग 5 0s are 0 एंड जब 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 0s are 0, 5 0s are 0, 7 2s are 14, 4 नीचे, 1 ऊपर, कैरी, 2 0s are 0 एंड 1 जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 0s are 0, 2 0s are 0. The answer will be 5, 4 plus 3 7, 1 plus 0 1, 0 and 0. सवाल यहाँ पे भी वही है कि पॉइंट कैसे लगाया है। राइट वाली वैल्यूज़ को काउंट करें, 1 2 3 4। अब काउंट करें, जो आंसर आया 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इज़ इट क्लियर? इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड पे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 16 के जो पार्ट 3 4 और 5 है वो इसी तरीके से होंगे। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके। यू हैव टू कंप्लीट योर दिस टास्क विद 2 days, 2 to 3 days, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर, Huda Hafiz. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes. This is our maths class for grade 5 and our lecture number is 13. Today we will discuss about the fractions. Our topic is fractions and percentages. But before starting our today's lesson, firstly recite dua with me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Let's move to our topic, our today's lesson. Open up page number 73. Page number 73. Look at the top. Exercise 18. We have to solve these operations one by one with the help of BODMAS rule, DBMS rule, division, multiplication, addition, then subtraction. But we have to be careful with these brackets. Firstly we will solve the small bracket, then curly bracket and then bigger bracket. We will solve question number 1.
This is our question number 1. Firstly, we have to solve this small bracket. हम 8.611 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मैंने आपको सिखाई है, आपने उन्हीं स्टेप पे सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आएगा 17.222। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में इसका स्मॉल ब्रैकेट को खोल देना है और ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। करली ब्रैकेट के अंदर हमने केयरफुल रहना है, बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करना है। ठीक है। बोर्ड मैथ्स रूल के तहत एडिशन है और डिवीजन है, तो इट्स मीन के पहले हम डिवीजन करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे। सेम वही मेथड है डिवीजन के भी, जो मैंने आपको डिवीजन सिखाई है। ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 57.407। अब हमने एडिशन करनी है। जब ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो आंसर ये आएगा 156.054। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज़, देन द आंसर विल बी 743.946। Look at question number 1 again, be careful. इसी एक्सरसाइज का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही मेथड, पहले हमने सॉल्व क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करना है, डिवाइड करवाना है। जब हमने डिवाइड करवाया हमारे पास आंसर आया 0.04। बाकी वही वैल्यू सेम लिख लेनी है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। नेक्स्ट पे देखें, अब करली ब्रैकेट आ गया है, स्मॉल हट गया, करली आ गया। करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है। 1.4 को माइनस करेंगे 0.04 से, आंसर विल बी 1.36। ओके। अब क्या करना है कि इस करली ब्रैकेट को, ये तो ख़त्म हो चुकी है, अब हमने बिग ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये वैल्यू वैसे ही चलती जाएगी साथ। ठीक है। आंसर आएगा 0 और 0 के साथ तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई की जाए आंसर 0 ही आता है। राइट। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी मेथड से होंगे। ठीक है। आप लोग इनको गौर से देख लें। You have to done by yourself or with the help of your parents or sisters. If you have any confusion regarding these, then you can ask with me. Now look at the page number 78, exercise 21. Write as a percentage. परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन है 28/100 और इन्होंने कहा है कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो आंसर आएगा 28%। ये कैसे आया? ये इस तरह आया कि 28/100 ये है फ्रैक्शन फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 28%। पार्ट 2 देखें, 32/100 और जब इसको मल्टीप्लाई करवाया 100 से, 100 से कैंसिल हो गया, 32% आ गया, ये आंसर हमारे पास। इसी तरह 45 को डिवाइड करवाया 100 से और जब हमने परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाया 100 से तो आंसर आया 45%। 80 divided by 100 multiply 100, 80%. This will be 60% and this will be 150%.
Look at the exercise 22. Complete the following table. परसेंट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, परसेंट उन्होंने खुद बता दिया 35%, फ्रैक्शन भी बता दिया। अच्छा, जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं जस्ट इसके नीचे 100 लगा देते हैं। ठीक है, 35/100। और जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 35 को 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.35। अब हमारे पास 50% है। अब हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें सिंपल पता है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 50/100 आ जाएगा। और जब डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद 0.50 आ जाएगा। अब उन्होंने हमें फ्रैक्शन दे दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 3 में दे दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप परसेंट निकालें, तो परसेंट हमें पता है, परसेंटेज मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। ये परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे। ये ब्लॉक जो है ये सारा फिल है, आप लोग इसको गौर से देख लें और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दिस वाज आवर टुडेज लेसन। आई होप सो यू ऑल हैव वेल अंडरस्टैंड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। Take care of yourself. खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम dear students. How are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes. This is our maths class for grade 5 and our lecture number is 14. Before starting our today's lesson, firstly recite dua with me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Okay, now let's start our today's lesson. Let's focus on our today's topic. We are studying about unit number 5, decimal fractions and percentages. Open up page number 79. Look at the top, exercise 23. Press the shaded and unshaded parts as percentages. यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं: शेडेड फ्रैक्शन, शेडेड परसेंटेज, अनशेडेड परसेंटेज। शेडेड फ्रैक्शन मतलब जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं और उनमें से शेडेड कितने हैं। टोटल ब्लॉक्स हैं 100, उनमें से 65 जो है वो शेडेड है। शेडेड परसेंटेज टोटल 100 है, तो 65 अगर शेडेड है तो इट्स मीन 65% ब्लॉक्स और शेडेड। अनशेडेड परसेंट टोटल 100 है, तो अनशेडेड जो है वो 35% होंगे। राइट, लुक एट द सेकेंड पार्ट। शेडेड फ्रैक्शन टोटल जो है वो 100 ब्लॉक्स है, उनमें से 43 जो है वो क्या है, शेडेड है। फिर शेडेड परसेंट 43 शेडेड है तो टोटल 100% होता है ना, तो 43% जो है वो शेडेड है और जो रिमेनिंग है 57 वो अनशेडेड है। लुक एट द एक्सरसाइज 24. राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म. 75%. We will write 75% in this form, 75/100. और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें, मतलब इसको हम मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, 20 की टेबल से कटिंग हो रही है। 23s are 75 and 24s are 100। ठीक है,
नेक्स्ट पे आए, पार्ट 2 50%। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 50/100, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 51s are 50, 52s are 100, 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 5%, we will change in fraction form 5/100 and this will be 1/20. 5 1s are 5, 5 20s are 100. Part 4 25%, 25/100, this is the fraction form, and 25 1s are 25, 25 4s are 100. %400, we will write this as fraction in 400/100. 100 1s are 100, 100 4s are 400. This is answer, lowest form. Part 6 150%, 150/100, and we will write it as 30/20, simplest form. 5 3s are 15, 0 as it is, 5 2s are 10, 0 as it is, 10 2s are 20, and 10 3s are 30. 3/2 is the simplest form. Look at the exercise 25, write as decimals. 35%, we will write it as 35/100. This is the fraction form, this is the sample question, and when we divide 35/100 the answer will be 0.35. Look at the part 3 2%, we will write it as 2/100, and when we divide 100 2/100 then the answer will be 0.02. okay, look at here, this is 2% and this is the fraction form, 2/100. When we divide 2/100 then we put point here and we put 0 with the help of this point. If we put 2 0 at a time then we put 0 in quotient. This is the quotient, हमें क्वेश्चन में एक और 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 2 0 लगाना चाहते हैं एट अ टाइम तो क्वेश्चन में हमने 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 2s are 200, 200 minus 200 0, and this is the answer. Part 5 90%, this is the fraction form, 90/100, and जो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 0.9। जिसके बाकी पार्ट्स हैं 2 4 and 6 ये भी सेम इसी मेथड से होंगे, ठीक है। यू हैव टू डन इट बाय योरसेल्व्स। दिस वाज आवर टुडेज लेसन। I hope so you all have understand it properly. You have to complete this task with 2 days. We will meet in the next lesson inshallah very soon. Take care of yourselves. Khuda Hafiz.